Good morning, student. Today we will begin with lecture number 43, unit number 4, shear force and bending moment. Topic: shear force. We'll take simple supported beam. We'll solve today two problems. First is question 1a. Calculate the shear force and draw shear force diagram for the given figure. Below given is a simply supported beam having 3-point load 10 Newton, 10 Newton and 10 Newton at point B, C and D. In this diagram you can see at B 10 Newton load at 2 meter from A, at C 10 Newton load at 4 meter from A, that is 2 plus 2 4 meter. Then at point D 10 Newton load at 6 meter, that is 2 meter plus 2 meter plus 2 meter, 6 meter from point A. First step, we have to find reaction at both ends, that is RA and RE. We know sum of all vertical force, summation Fi is equal to RA plus RE upward direction minus point load 10, 10, minus 10, minus 10, minus 10, which is equal to 0. Therefore, RA plus RE is equal to 30 Newton. Taking moment about point A, summation M, which is equal to RA at point A, the distance of A from A is 0, therefore RA into 0, minus reaction RE, perpendicular distance from between A and E is 8, so multiplied by 8, plus moment of first force, that is 10 at point B is 10 into 2, it's positive because it's clockwise, plus moment of second force, that is 10 Newton at point C 10 into 4 meter, plus moment of third force 10 Newton at point D 10 into 6 is equal to 0. By solving we get reaction at E is equal to 15 Newton and reaction at A is equal to 15 minus RE is equal to 30 minus 15 is equal to 15 Newton. Step 2. Calculation of shear force. At point A, shear force at left of A is equal to shear force at left of A is equal to VC. There is nothing, so it's 0. Then shear force at A at point A is nothing but vertical reaction RA acting in vertical upward direction. So shear force at A is 15 Newton. At point B, first shear force at just left of B is equal to shear force, that is here we have RA left of B, you see in the diagram RA left of B, which is 15 Newton. Next, shear force at B is nothing but from left side again you take, we have RA 15 Newton minus at point B you have 10 Newton. So 15 minus 10, 5 Newton. At point C, shear force at just left of C. C को थोड़ा छोड़ के, C पॉइंट छोड़ के जस्ट उसके लेफ्ट पे शेयर फोर्स निकालना है. तो इसके लिए हम फिर से एक एक फोर्स A से लेते हैं, लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं शेयर फोर्स निकालते समय. तो A पॉइंट पे RA है, उसके बाद B पॉइंट पे -10 है. ओके, सो यू गेट RA इज 15 minus 10, you get 5 Newton. Next, shear force at C. Shear force at C is equal to left RA है at point A minus 10 Newton downward acting at point B minus 10 Newton downward acting at point C. So you get RA is 15 minus 10 minus 10, you get minus 5 Newton. Next, shear force at point D. Shear force at just left of D
फिर से हम लेफ्ट साइड से लेते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट पे आ रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन तो प्लस है, उसके बाद बी पॉइंट पे वर्टिकल डाउनवर्ड लोड 10 न्यूटन तो -10, उसके बाद सी पॉइंट पे वर्टिकल और डाउनवर्ड लोड -10, सो वी गेट आर ए -10 -10। आर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 15 -10 -10 वी गेट -5 न्यूटन। उसके बाद शेयर फोर्स एट डी, हम हमेशा दो जगह पे लेते हैं, जस्ट कोई भी पॉइंट पे लेना है तो उसके लेफ्ट पे और उस पॉइंट पे, वो पॉइंट छोड़ के लेफ्ट पे और उस पॉइंट पे। तो इस प्रकार से इधर भी हमने वैसे ही किया है। अब हम देखेंगे शेयर फोर्स एट डी। डी पॉइंट जब देखते हैं तो डी पे पॉइंट पे जो लोड है वो भी कंसिडर करते हैं। फिर शेयर फोर्स एट डी, अगेन वी विल गो टू लेफ्ट साइड, फ्रॉम ए वी विल बिगिन आर ए इज रिएक्शन एट ए। उसके बाद बी पॉइंट पे -10 न्यूटन है एक्टिंग डाउनवर्ड, उसके बाद सी पॉइंट पे -10 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड, उसके बाद डी पॉइंट पे -10 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड। तो सारे शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो भी वर्टिकल फोर्सेस है उनका समीशन, जो भी वर्टिकल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, और जो भी वर्टिकल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो नेगेटिव होगा। इसलिए यहाँ पे आर ए -10 -10 shear force at D is nothing but 15 -10 -10 -10, that is -15. Next, at point E, shear force at just left of E. Shear force just left of E is, again we begin with RA, then at point B -10 Newton, at point C -10 Newton, at point D -10 Newton. Shear force left of E is equal to RA is 15 -30 -15 Newton. Next, shear force at E. Shear force at E is nothing but shear force including all from all the left side and including at point E. सारे लेफ्ट साइड से जितने फोर्स आते हैं उतने, और पॉइंट ई तक और इंक्लूडिंग पॉइंट ई पे जो फोर्स है वो कंसिडर करना है। इसलिए फिर से आर ए -10 -10 -10 plus RE, that is reaction at E. So you get RA 15 -10 -10 -10 plus 15 is equal to 0. Now with the help of these shear force which we have determined, अलग अलग पॉइंट पे जो भी shear force हमने डिटरमाइन किया उसके बेस पे हम shear force डायग्राम कैलकुलेट करेंगे। Let's see. Shear force diagram at point A, RA upward direction 15 Newton, and shear force at point just to the left of B. Just to the left of B हम देखें तो 15 न्यूटन था। तो ये सारी लाइन्स जॉइन करते। सबसे पहले शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ ए 0 था, उसके बाद शेयर फोर्स एट ए 15 न्यूटन, उसके बाद शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ बी 15 न्यूटन, उसके बाद शेयर फोर्स एट बी 5 न्यूटन, उसके बाद शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ सी 5 न्यूटन, उसके बाद शेयर फोर्स एट सी -5। तो ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके मार्क करते हैं और उसे जोड़ते हैं। यानी हमने सब, यदि किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि हम रफली ये पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं। पॉइंट ए, बीम ए और ई को बेस पकड़ के 0 रेफरेंस लाइंस पकड़ के उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव। तो उस प्रकार से हम 15 एक अंदाज़ा 15 लेते हैं, मार्क करते हैं। दूसरा 15 बी पॉइंट पे आता है तो सेम लेवल पे रहेगा तो पॉइंट ऐड करते हैं। तो ये सारे पॉइंट यानी ए पॉइंट से जोड़ते 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 आपको ये डायग्राम मिलेगा। सारे पॉइंट मार्क करना है और उसे जोड़ना है। ठीक है, तो अब हम सी पे रुके थे, अब सी के बाद हम डी पे जाएंगे। शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ डी, शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ डी -5 हमने जो कैलकुलेट किया वो सब देखिए। उसके बाद शेयर फोर्स एट डी -15। अब ये हमेशा सब में कन्फ्यूजन होगा कि जस्ट लेफ्ट ऑफ डी यानी लेफ्ट के लेफ्ट साइड लेते हैं और फिर डी पे
लेते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है, इसीलिए हम एक सिंगल लाइन पे लेते हैं लेफ्ट ऑफ डी, यानी जस्ट लेफ्ट ऑफ डी, यानी एक पॉइंट छोड़ के। इसलिए जब हम यहाँ पे समझो डी पॉइंट पे लिए शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ डी, तो -5 आया, और फिर जस्ट एक पॉइंट आगे बढ़ गए तो उसमें डी पॉइंट कंसिडर हो गया, इसलिए -15 आ गया। इसलिए -5 और -15 को ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। यूँ समझिए कि बस एक पॉइंट छोड़ के करना है, यानी एक पॉइंट छोड़ना है मतलब डी पे जो लोड है वो छोड़ के करना है। तो उसी प्रकार से हमने शेयर फोर्स कैलकुलेट किया है और ये आपको एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन मिल गई। नेक्स्ट, शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ ई इज -15 and shear force at E is 0. So this is how we have drawn the shear force diagram. So we will solve the second numerical. Now before we begin with the second numerical, I want to tell you that we will be learning to draw shear force diagram for two types of support. One simply supported and the next is cantilever support. So कैंटिलीवर सपोर्ट का हम कुछ लेक्चर बाद में देखेंगे, पहले सिंपली सपोर्टेड पे ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन 2, कैलकुलेट द शेयर फोर्स एंड ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम फॉर द गिवन फिगर। अभी तक हम पॉइंट लोड देखते थे, सिंपली सपोर्टेड बीम था और उस पर पॉइंट लोड लोडिंग देखे थे। अब यहाँ पे हम सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल लोडिंग देखेंगे। आगे आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगे किसी प्रकार से भी आ सकते हैं, उस पर वर्टिकल सिंपल लोडिंग रहेगा, उसमें यूडीएल लोडिंग भी हो सकता है कम्प्लीटली, या उसमें मिक्स यूडीएल प्लस सिंपली सपोर्ट, यूडीएल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड वर्टिकल लोड दोनों भी हो सकते हैं। यूडीएल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड वर्टिकल लोड दोनों हो सकते हैं, ये आप दोनों भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है ए बी सी, ए left hand support, C right hand support, B is the mid span, point at mid span. Distance or span is 1 meter. UDL, that is uniform distributed load of 1 kilonewton per meter. 1 kilonewton per meter. Let's solve the problem. We have a UDL. We have to first find reaction at RA and RC. Sum of all vertical force is summation of force in y direction, that is summation Fy is equal to reaction at A plus reaction at C minus the complete vertical load. Complete vertical ऊपर क्या है, total load UDL load, that is WUDL into total length. UDL यानी लोड पर यूनिट लेंथ इंटू टोटल लेंथ मल्टीप्लाई किए तो आपको टोटल लोड पता चल जाएगा। आई रिपीट, जैसे हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में करा है, बस सिंपल वही है। W यानी यूनिट, दैट इज लोड पर मीटर इंटू लेंथ, इस लेंथ इन मीटर। सो इस तरह से आप मल्टीप्लाई किए तो आपको टोटल लोड पता चल जाएगा। सो RA प्लस RC माइनस WL इज इक्वल टू 0। Therefore RA plus RC is equal to W into L, that is W is 1 into L is 1, we get 1 kilonewton. Taking moment about A, that is summation of all moment about A is equal to RA. RA vertical acting at A point, distance between A point and A point is nothing but 0, so RA into 0. Next, reaction at C, RC, and distance between, perpendicular distance between A and C is 1, so you have it minus RC into 1 plus vertical upward load WL, complete load उसका मोमेंट अबाउट A, यानी टोटल लोड हुआ WL, और हमने देखा है WL का यदि हम मोमेंट निकालना है तो उसका हम मिड स्पैन लेते हैं, या ओ जो भी लेंथ है उसका मिड पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे टोटल लेंथ L है तो उसका मिड पॉइंट हो गया L/2, तो वहाँ से उसका सेंटर पकड़ा जाता है, वहाँ से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना जाता है। तो इसलिए हम एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं उसे, और
उस पॉइंट लोड से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। ये सारी चीज़ हमने अप्लाइड मैकेनिक्स में पिछले बार सीखे हैं, आपको याद होगा। सो WL into L divided by 2 is equal to 0. Substituting the value, you get RA into 0 minus RC into 1 plus W is 1 into length 1 into 1 by 2 is equal to 0. By solving, we get RC is equal to 0.5 kilonewton and RA is equal to 1 minus RC is equal to 1 minus 0.5, which is equal to 0.5 kilonewton. So we have RA and RC 0.5 kilonewton. Step 2, we will solve, determine shear force. Similarly, same method जो अभी तक यूज़ किया है, पॉइंट कंसिडर करेंगे हम, ए पॉइंट कंसिडर करेंगे, सी पॉइंट कंसिडर करेंगे क्योंकि एंड सपोर्ट है, और यहाँ पे अब पॉइंट लोड कहीं भी नहीं है तो कोई तो भी मिडल का एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। मिडल का पॉइंट यानी मिड स्पैन का पॉइंट, मिड स्पैन पॉइंट है बी, तो बी पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, उस पर हम ये 3 पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालेंगे। एट पॉइंट ए, shear force at left of A is nothing, so shear force at left of A is equal to 0. Shear force at A is RA vertical upward direction, which is equal to 0.5 kilonewton. Then shear force at point B, mid span. Shear force at just left of B is nothing but लेफ्ट साइड से हम देखेंगे तो पहले RA माइनस W, RA यानी A और B में जितना लोड आता है वो लोड हमको कंसिडर करना है। A और B में जितना वर्टिकल लोड एक्टिंग डाउनवर्ड आता है कंसिडर करना है। अब यहाँ पे यूडीएल है, इसलिए हम उसे W इंटू A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, L डिवाइड बाई 2। B मिड स्पैन है तो डिस्टेंस हो गया A और B के बीच में L डिवाइडेड बाई 2। इसीलिए shear force just left of B is RA, that is reaction at A, minus WL divided by 2. So substitute value, RA is 0.5 minus 1 into 1 by 2. 1 is W, that is 1 kilonewton per meter. L is 1 divided by 2, which while solving we get is equal to 0. Similarly, shear force at B is again left side से हम देखते हैं तो RA है, that is 0.5 minus मिड पॉइंट तक लोड माइनस W into L divided by 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0.5 माइनस W is 1 into L 1 by 2 is equal to 0। तो मिड पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 आएगा, मिड पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 आएगा। ध्यान में रखिए, आगे हमें डायग्राम भी ड्रॉ करना है। एट पॉइंट सी, अब वैसे ही सी पॉइंट पे दो जगह पे हम शेयर फोर्स निकालते हैं, जस्ट लेफ्ट ऑफ सी और सी, लेफ्ट ऑफ सी और सी पे। तो पहला है शेयर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, वो क्या है, तो लेफ्ट से पूरा कंसीडर करेंगे फिर से हम। RA यानी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, और उसके बाद ए पॉइंट से सी पॉइंट तक लेके यूडीएल है तो सारा का सारा लोड तो कितना है सी पॉइंट पे, स्मॉल w और कंप्लीट L, W into L। So shear force at C is equal to 0.5 minus W is 1 into length 1, which comes to be minus 0.5 kilonewton, 0.5 kilonewton। Now shear force at C, अब एक पॉइंट था सी पॉइंट छोड़ के हमने जस्ट लेफ्ट ऑफ सी पे निकाला था। अब यहाँ पे शेयर फोर्स एट सी यानी सी पॉइंट पे जो लोड है वो भी हम कंसिडर करेंगे। तो फिर से हम शेयर फोर्स का देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड में RA है, उसके बाद टोटल लोड माइनस W इंटू L, टोटल लोड
plus C point पे load vertical upward, that is plus RC, plus RC. So RA 0.5 minus W1 into L1 plus RC 0.5. By solving, it comes to 0. It comes to 0. Now we will draw shear force diagram. Draw shear force diagram. To draw shear force diagram, ABC are the 3 points. ABC are the 3 points. पहला A पॉइंट है, शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ A, तो शुरुआत से करो, लेफ्ट ऑफ A पे कुछ भी नहीं है, A पॉइंट पे तो 0. उसके बाद शेयर फोर्स एट A 0.5 है, तो 0.5 ऊपर मार्क कीजिए, प्लस में है तो ऊपर मार्क कीजिए. उसके बाद शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ B, अगर आप देखेंगे जस्ट लेफ्ट ऑफ B, तो B पॉइंट पे हम देखते हैं जस्ट लेफ्ट ऑफ B, यानी B पॉइंट ही कंसिडर करते हैं ड्रॉ करते टाइम पे, जस्ट लेफ्ट ऑफ B. तो B पॉइंट पे अगर हम देखेंगे शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ B 0 है, तो 0 करते, यानी A और C बीम पर ही आएगा, क्योंकि वो रेफरेंस है, वहाँ से 0 है, वहाँ से ऊपर शुरू होता है प्लस 1 2 3 4, और वहाँ से नीचे माइनस 1 2 3 4. इसलिए B पॉइंट पे हम मार्क करते हैं, B पॉइंट पे 0 है. उसके बाद शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ C, जस्ट लेफ्ट ऑफ C अगर हम देखेंगे तो C पॉइंट लेते हैं, C पॉइंट जस्ट लेफ्ट ऑफ C बोल तो C ही है, तो वहाँ पे जस्ट एक पॉइंट छोड़ के, यानी 0.5 किलो न्यूटन, 0.5 किलो न्यूटन. उसके बाद शेयर फोर्स एट C, शेयर फोर्स एट C इज 0. तो ये सारे पॉइंट मिल गए, 0, A पॉइंट पे 0 और 0.5, B पॉइंट पे 0, C पॉइंट पे 0.5 और 0. अब ये ड्रॉ करके ज्वाइन करना है, 0 और 0.5 ड्रॉ किए, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल अपर डायरेक्शन में. फिर 0.5 और B को ड्रॉ किए तो ट्रायंगल शेप आता है प्लस ऊपर. फिर B पॉइंट का 0 और 0.5 C पॉइंट का ये ड्रॉ करते हैं, तो 0.5 नीचे जाता है. उसके बाद 0.5 C पॉइंट का डाउनवर्ड इसमें ड्रॉ करते हैं, तो C पॉइंट पे 0 होता है. तो बीम के ऊपर का पूरा पॉजिटिव, बीम के नीचे का नेगेटिव, इसलिए प्लस और माइनस साइन, प्लस और माइनस साइन. इसके बाद these are the assignments, solve it. 2 numericals, please solve it. Okay, question number 1, calculate the shear force and draw shear force diagram. Here it's beam ABC, UDL 2 kilonewton per meter, span 1 meter. Second, calculate the shear force and draw shear force diagram for the given beam ABC, span 2 meter, UDL 2 kilonewton per meter. So thank you students, that is for the day.